Hello students, welcome to the Nitya Foundation Academy. How are you all? I hope you all will be fine. Students, the classes which we started yesterday, that was the classes of the introduction. So we will just continue with the today topic. The topic which was conducted yesterday, that was regarding the reflection and as well as what is light. Okay. Now today we will go together with the effects of the light. Light के effects के बारे में हम लोग जानेंगे. So, as you know very well that there are several effects of light. There are several effects of light. Okay? There are several effects of the light. Light के हम लोग कई सारे प्रभाव देखते हैं, कई सारे उनके effects हम लोग देखते हैं. So, क्या होता है? So, the first effect that is reflection. Okay? The first effect that is the reflection. The second effect that is the refraction, ठीक है, and the third effect that is dispersion. Okay students, so reflection, refraction and dispersion. One by one I am just going to continue with this topic. Okay, so what is reflection actually? So reflection means the bouncing back of the light, bouncing back of the light to its same medium. ठीक है, to its same medium means when the light bounce back to its same medium, then we will call it as a reflection, and it is the one of the effect of the light. Fine students, what is refraction? What is refraction? So refraction means the bending of light. Bending of light when it travel from one medium to another medium. Okay students, so this is the bending of light. And what is dispersion of light? What is dispersion of light? So I am just going to explain here dispersion of light. So students, dispersion of light means when a white light emits 7 colors. When a white light emits 7 colors, this phenomena is called dispersion of white light. This phenomena is called as dispersion of white light. So here reflection, refraction and dispersion. Okay, this is the just a single introduction which I am going to explain here: reflection, refraction and dispersion. And I am just continuing with the topic that what are the basically informations we will study with the NCERT topic. Okay, so जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब लाइट अपने सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो वापस उसी मीडियम में वापस अगर आ जाता है, सो इसे हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट का बेंडिंग होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है, जब लाइट का बेंडिंग हो रहा होता है, सो व्हेन द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. एंड द अनदर वन इज डिस्पर्सन. जब व्हाइट लाइट जब 7 कलर इमिट करता है, एक व्हाइट लाइट से जब 7 कलर बिखर के तैयार होते हैं, सो ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, ये कहलाता है हमारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट. इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट. नाउ वी विल गो विद द रिफ्लेक्शन. हम लोग एक एक करके क्या रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को समझना पड़ेगा.
ठीक है, रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को समझना पड़ेगा। ये जो है हमारा एक प्लेन सरफेस है, और ये जो पार्ट जो आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पॉलिश सरफेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस वी कॉल्ड एज ए पॉलिश्ड सरफेस। ये जो है हमारा, इसे हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है एक तरह का, तो ये है आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, जब लाइट यहां से बेंड करता है, मतलब लाइट यहां पे जब लाइट यहां पर आपको फॉल करता है, सो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। मीडियम कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूँ कि मीडियम बेसिकली होते क्या है। देखिए, मीडियम का मतलब हो जाता है जैसे कि लाइट जो है उसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट हर एक मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो उसमें कुछ उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। वो लाइट को रोक तो नहीं सकता है, ना लाइट को वो खत्म कर सकता है, बट लाइट में थोड़ा सा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो मीडियम है, जिस मीडियम में भी लाइट है, दैट वी कॉल्ड एज ए एयर मीडियम। अगर कोई मीडियम है जिसे हम कहते हैं कि ये एक एयर मीडियम है, सो इस एयर मीडियम में जब ये लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट करके अगेन इस एयर ही मीडियम में वापस जा रहा है, सो ये कहने का मतलब है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू इट्स सेम मीडियम, यानी जिस मीडियम में ये था उसी मीडियम में ये वापस से बाउंस बैक कर गया। सो ये कहेंगे हम इसको रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लाइट टू इट्स सेम मीडियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये रे आप जो देख रहे हैं ना, इस रे को हम क्या कहते हैं, सो इस रे को स्टूडेंट्स कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो पहला रे आपको जब फॉल होता है किसी भी प्लेन सरफेस पे तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इसी तरह से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब ये वापस टकरा के उसी मीडियम में जाता है तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में जो एक इमेजिनरी रे होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। ये जो रे है ना, ये आपको एक इमेजिनरी रे होता है, इसे आप एक्चुअल रे मत समझिएगा, ये एक नॉर्मल रे होता है, ये एक एक्चुअली आपका इमेजिनरी रे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा आपका नॉर्मल रे। कोई भी अगर आपके घर में कोई प्लेन सरफेस है, मीन्स अगर जस्ट लाइक वॉल है, या कोई अगर शाइनिंग स्मूथ सरफेस है, या इवन पानी भी अगर एक जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, सो उस पर भी अगर जब लाइट फॉल होता है तो आप देख पाते हैं कि आप अपना इमेज उस पर देख पाते हैं, है ना, वो एक इमेज देख पाते हैं। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो जब लाइट उस पर फॉल किया तो अगेन वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आईज तक वो पहुंचाया, जो सेंस करता है कि ये तो आप ही का इमेज है। सो याद रखें कि कोई भी रे जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इमिट करता है, टकराता है, सो वो उसी डायरेक्शन में मींस उसी एंगल के डायरेक्शन में वापस वो लौट जाता है। अब देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, ठीक है। एंगल आई यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एंगल आई है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल आर क्या है, सो एंगल आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये जो रे है ये अगर एक 45 डिग्री पर अगर फॉल किया है, ठीक है, सो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। सो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस दिशा में वापस जा रहा है तो ये उसी एंगल पे वापस जा रहा है। हियर एंगल आर इज इक्वल टू आल्सो 45 डिग्री, ये जो है उसी दिशा में वापस जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये पूरा मैकेनिज्म हुआ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमने ये चीज समझा, इसको समझने के लिए हमने देखा कि ये एक प्लेन सरफेस में मैंने आपको गाइड किया हुआ है। अगर इसी तरह से अगर मैं एक स्मूथ अगर कोई रफ सरफेस अगर मैं देखता हूं तो रफ सरफेस पे क्या होगा, आप देखिए रफ सरफेस पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रफ सरफेस ले रहा हूं, वो रफ सरफेस थोड़ा सा जिगजैग है ना, थोड़ा सा जिगजैग है, इस टाइप का है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये रे जो है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है, सो फॉल करने पर ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में लौट गया, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसे तय हुआ? तो ये डायरेक्शन तय हुआ इस एंगल पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक इमेजिनरी रे होता है, जो आपका कौन सा रे होता है? तो ये आपका नॉर्मल रे होता है। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आई है, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो है आपका एंगल आर। सो एंगल आई यहाँ पर हमको कितना मिला? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 45 डिग्री मिला, ठीक है। तो एंगल आई 45 है, सो डेफिनेटली एंगल आर भी क्या होगा आपका? 45 डिग्री होगा। एंगल आर विल आल्सो बी 45 डिग्री। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, कुछ और रेज लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेज जो है हमारे वो कुछ इस तरह से फॉल किए इस पे। सो ये जो है आपका इस डायरेक्शन में गया। अब देखिए यहाँ पर भी मैं जब बात करूं तो इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक जो है आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये एंगल है इसे हम क्या कहेंगे? आपको बताया मैंने, एंगल आई कहेंगे, और इसे कहेंगे एंगल आर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये एंगल आई जो है अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये 65 डिग्री है, सो एंगल आर भी हमारा कितना डिग्री होगा? 65 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों रेज में कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपस में क्या है? पैरेलल नहीं है। देखिए अगर ये प्लेन सरफेस होता तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में ये पैरेलल होता। सो अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है कि वो जो सरफेस है वो किस प्रकार का सरफेस है? वो एक स्मूथ सरफेस है। ये जो रे है और ये रे है, ये दोनों रे अगर आपस में पैरेलल है, इट मींस कि वो एक तरह का स्मूथ सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। बट ये जो रेज हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं? आपकी जो प्लेन सरफेस में नहीं है, इसलिए ये एक डायरेक्शन इसका इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। इसको अगर समझना है तो 2-3 और इस पे हम लोग समझते हैं देखकर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक रे यहाँ पर ले लिया तो ये इधर चला गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो रे है हमने अभी जस्ट बताया आपको कि ये आपका नॉर्मल रे होता है। तो ये नॉर्मल रे जो होगा यहाँ पर इसका जो एंगल आप देखेंगे, सो एंगल आई और एंगल ये होगा आपका आर। एंगल आई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो है आपका 40 डिग्री है, तो ये एंगल आर ये भी आपका कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। तो सभी के बीच का जो एंगल है ये अलग अलग है। सो डेफिनेटली ये सारे के सारे आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए ये एक तरह का कौन सा सरफेस हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका रफ सरफेस, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे रफ सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको मैंने गाइडलाइन दिया है रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। ये मैंने जो आपको आज की क्लासेस में जो बताया है दैट इज द क्लासेस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू गिव यू more and more videos about this chapter. Thank you for watching this.